Before going to discuss about today's session, first what we learned in last lecture. Please quickly. What we learned in last lecture and what we discussed in last lecture. Anybody? Last lecture means yesterday we have lecture. Okay. So what will subspaces? Good. Then Example of subspecies. example of subspaces. Very good. Vidhi. Only one student present here, physically and mentally. What about other And student? linear combination. Linear combination. Okay, we have started introduction to linear combination. Okay, so today I start with that linear combination. Okay, so we reached up to here. Okay, in last lecture we have done some example and introduction to subspaces of a vector space. We done first, second, third. Okay, and these are the exercise. And fourth one also. Okay, मैंने आपको fourth one example भी discuss किया था. Am I right with you? है ना? Yes, sir. Okay, then we go for not, yes, this is not a linear independence dependence, this is the linear combination. Okay, so what do you mean by linear combination? So linear combination means a vector V belongs to V is called a linear combination of vectors V1, V2, V3 up to sun Vn if it can be expressed as V is equal to the alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 up to so on alpha and Vn, where alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n are scalars. Okay, if you represent V as the addition and scalar multiplication of the other vectors, then you can say that it is a linear combination. Okay, done. Okay, clear. Then okay, we have done one first example also. Am I right? So consider the Yes, sir. subset S is equal to यहाँ पे zero था I think 0 1 minus 1. Yes, 0 1 minus 1 2 0 1 minus 3 2 5 of R3. Okay, I have considered three vectors of R3 as S. Okay, there is a one set S is equal to these three vector. That means it is V1, it is V2 and it is V3. Okay, then the vector 2 minus 2 3 linear combination of vectors of S because okay अब वो क्यों है वो हम फाइंड कर रहे हैं कि मीन्स वी वांट टू so that this vector is linear combination of these three vector. Okay, so we want to verify it. So how we can verify it? You can put the definition first here. So V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3. Then alpha 1 into V1. What is my V1? 0 1 minus 1 plus alpha 2 2 0 1 alpha 3 minus 3 2 5. Okay, if you write down in this way, then what is my V here? Replace the value of V. V is 2 minus 2 3. So here if I multiply alpha 1 individually, then 0 alpha 1 minus alpha 2 2 alpha 2 0 alpha 2 minus 3 alpha 3 2 alpha 3 5 alpha 3. Okay, from that you can compare both sides point by point. Okay, so after addition of this vector means addition क्या हो गया यहाँ पे 2 alpha 1 minus 3 alpha 3 comma alpha 1 plus 0 plus 2 alpha 3 comma minus alpha 1 plus alpha 2 plus 5 alpha 3. Now you can compare both sides. So what is my first equation? 2 alpha 1 minus 3 alpha 3 is equal to 0. Second equation is alpha 1 plus 2 alpha 3 is equal to minus 2. And third one is minus alpha 1 plus alpha 2 plus 5 alpha 3 equal to 3. Okay, this is the system of equation. Which are our variable? Our variable is alpha 1, alpha 2 and alpha 3. So if you solve this linear system of equations and find out the value of alpha 1, alpha 2, alpha 3, if you have the value of alpha 1, alpha 2, alpha 3, then it is known as the consistent system. And if you have
problem to find the alpha 1, alpha 2 and alpha 3, then it is inconsistent system. Okay, here we can find alpha 1 is equal to -2, alpha 2 is equal to 1 and alpha 3 is equal to 0. So you can say that 2 minus 2, 3 is a linear combination of V1, V2 and V3. Okay, so this is the linear combination fundamental concepts. Okay, what we proceed, how we can find the linear combination. So these are the two steps to find the linear combination. In earlier example, you have to write this expression first. That means V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V3 and so on alpha and Vn. If you have 3 vector, then it is up to 3 V3. Okay. Then second step is very important. If the system of equation, इस तरीके से आपको मिलेगा system of equation, and if you solve that system and if it is consistent, then you can say that it is a linear combination of others vectors. And if it is not consistent, that means it is inconsistent, then V is not a linear combination of V1, V2, V3 and V4. Is there any confusion up to here, student? Already I discussed this in last lecture. Any doubt up to here? No, sir. Okay, thank you. Then we go for our first example. Okay, how to find out the linear combination. Okay, so done. So first example, which of the following are linear combination of V1 and V2? Okay, we have two vectors V1 and V2 and we want to check that the first one is the linear combination of V1 and V2 or not. And second example is 0, 4, 5 is the linear combination of V1 and V2 or not. Okay, so I start with that example. So this is my example. Which of the following are linear combinations of V1, V2? Okay, so what is my first step? What is my first step? I am solve example 1. So this is the solution of example 1. So what is my first step? So first step is write down let small v is equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2. You can put as alpha beta also. Okay, you can consider as alpha beta also, no issue, as a scalar. Okay, now next step. This is your first step. Okay, alpha 1 v1 plus alpha 2 v2. Now what is my v here? V is my 3 1 5. This is your v. Okay, and this is your v1 v2. So v is my 3 1 5 equal to alpha 1 is as it is, v1 is my 0 minus 2 2 plus alpha 2, v2 is my 1 3 minus 1. Okay, screen is visible or not, student? Yes, sir. Visible. Okay, okay. 3 1 5 equal to, here you can multiply alpha 1 and alpha 2 inside. So we have 0 minus 2 alpha 1 and 2 alpha 1 plus alpha 2, sorry, not plus, there is a comma. Okay, comma alpha 2 comma 3 alpha 2 comma minus alpha 2. Okay, now you can add two vectors. So what we have, alpha 2 comma minus 2 alpha 1 plus 3 alpha 2. This is the vector addition. Okay, simply element to element, 2 alpha 1 minus alpha 2. Clear? And what is my left hand side? It is 3 1 5. Okay, after comparing both sides, we have, you can write only, we have alpha 2 is equal to 3. Okay, first, second, that means minus 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 is equal to 1, and third one is 2 alpha 1 minus alpha 2 is equal to 5. So here we have directly alpha 2 is equal to 3. Okay, so our first task is complete because we have alpha 2, the value of alpha 2 is we have. So only we have to substitute alpha 2 is equal to 3 in any one of the equation, following equation. Okay, so what we can do here, substitute in second. Okay, so implies
2 alpha 1 minus 3 is equal to 5 implies 2 alpha 1 equal to 8 and alpha 1 equal to 4. Okay, now only verify once. Is it okay? Means alpha 1 and alpha 2 is right or wrong, you have to check by not use the equation. Okay, so यहाँ पे आप रखो तो क्या होगा, this is only verification, nothing else. So 8 plus 9, so it gives 1 and it is equal to 1, so this satisfy this. So here alpha 1 and alpha 2 both are our original value. Okay, so we get here alpha 1 alpha 2, therefore we can say that, what we can say that, therefore V is equal to alpha 1 plus alpha 2 V2, sorry, alpha 2 V2, okay, alpha 2 V2, therefore V is equal to, कौन सा था V, what is our V, 315, okay, 315 is a linear of combination of V1 and V2. V1 and V2 already we mentioned in statement. Okay, clear? Any confusion in this example? No, sir. Anybody? How many students understand this? Please raise your hand quickly. Good, very good. Okay, 503, 509. Okay, good. They are doing. Okay, 509. Is there any doubt? Darsil, Soumya, Dhairya, have you any question? Jay, Drumil. Is screen black થઈ Sorry? Dhairya, what is your problem? સ્ક્રીન બ્લેક થઈ ગઈ છે. Okay. Means it is not visible to you. No, sir. Okay. So you have to follow the recording. Am I right? Yes, sir. Okay. No problem. देख लेना एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे पूछ लेना. ओके, नो इश्यू. ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर, सौम्या? Okay, then we go for the second. Okay, try for this 045. Try for this. All students have to try for 045. Okay. So what is our V in second? Solution of second. Okay. So in that V is equal to our 045. Okay, so first step is our let V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 again. So what is my V here? 045. Okay, I already done this process, alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 in first case. So directly I write down this minus 1 plus 3 alpha 2. Okay, directly I have to write that. So alpha 2, what we get here, alpha 2, but in your examination you have to do that. Okay, so 2 alpha 1 plus 3 alpha 2, 2 alpha 1 minus alpha 2. Okay, this is my, after addition and scalar multiplication I got alpha 2 minus 2 alpha 1 plus 3 alpha 2, 2 alpha 1 minus alpha 2. Okay, so please find out alpha 1 and alpha 2 from all three equations. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, we have alpha 2 is equal to 0. Second expression is my 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 is equal to 4, and 2 alpha 1 minus alpha 2 is equal to 5. Okay, so from equation 1, 2 and 3 find out alpha 2 and alpha 1. चलो मुझे बताओ क्या आएगा.
satisfy any threshold is 7. Yes, good. You are right. Okay. Okay. All other students, you can see here alpha 2 is equal to 0 we have. Okay, from first equation. And if you substitute alpha 2 is equal to 0 in second equation, so 2 alpha 1 is equal to 4. It gives alpha 1 is equal to minus 2. Okay. But मैंने आगे आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी बोला कि यू हैव टू वेरीफाई इट विथ थर्ड इक्वेशन। अगर ये नहीं किया ना प्रोसेस तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे हमको अल्फा एंड अल्फा 2 मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, बट इट इज नॉट अ करेक्ट वे। ओके, सो यहाँ पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके चेक करना है, वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई। सो इफ यू रिप्लेस minus 2 here, so minus 4 minus 0, it is minus 4 and our answer is 5. So this is a conflict here, am I right? Are you got it? Yes, sir. Okay, that Yes, sir. means alpha 1 and alpha 2 हमारे यूनिक नहीं है, हमको दूसरे भी मिल सकते हैं ना। क्लियर? यहाँ पे आप देखो कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। अंडरस्टैंड? Clear, student? Okay. Yes, sir. Yes, sir. That therefore यहाँ पे हम सीधा लिख पाएंगे v is not equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2. Okay. Therefore v is not a linear combination of v1 and v2. Clear? How many students understand this example? Please raise your hand. Okay, done. चलो good, very good. Okay, this is the first method. Okay, कि आपको सीधा एलिमिनेशन से अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दो ही वेक्टर थे और यहाँ पे सिंपल आपको एक वेक्टर दे दिया गया था। लेकिन when you have more than 2, 3, 4, okay, so at that time you have to go with the matrix algebra. Okay, तो मैट्रिक्स एल्जिब्रा हमने जैसे पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, उसी के थ्रू में आपको जाना पड़ेगा। वो कैसे करना है आई विल एक्सप्लेन यू ओके इन सेकंड एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल नंबर 1, वी डन both the example. Okay, now second example, which of the following are linear combination of a1 a2 a3? Okay, means फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू ऑप्शन, सो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे इसमें भी दो एग्जांपल है तो हम ट्राई करते हैं। चलो, वी डन दैट एग्जांपल। सो व्हाट इज माय स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हाट इज माय a1 a2, सो आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल नंबर 2, a1 is equal to I have 4 0 minus 2 minus 2, a2 is equal to 1 minus 1 2 3, and a3 is equal to 0 2 1 4. Okay, and the first one is solution of first. My first vector is minus 1 5, yes 7 1. Okay, this is my first matrix. Okay, so solution we start here. So let v is equal to first, not v, here it is in matrix, so we use the matrix notation. Okay, so a is equal to minus 1 5 7 1. Okay, clear? a is equal to, पहले उसको नेम दे दिया मैंने, so a is equal to this one. Now again let a is equal to alpha 1 a1 plus alpha 2 a2 plus alpha 3 a3. This is my step number 1. Okay, so I put or I substitute all these values here. So I have minus 1 5 7 1 equal to alpha 1 a1 means 4 0 minus 2 plus alpha 2 a2 means 1 minus 1 2 3 plus alpha 3 0 2 1 4
Okay, so if you multiply alpha 1, alpha 2, alpha 3 in matrix, alpha 1 is multiplied by 2, multiply to each entry. So 4 alpha 1, this is 0, minus 2 alpha 1, minus 2 alpha 1. Okay, then second entry is, second matrix is alpha 2 minus alpha 2, 2 alpha 2, 3 alpha 2, okay, plus 0, 2 alpha 3, 1, sorry, 1 not 1, alpha 3 and 4 alpha 3. Okay, this is your alpha 3. Clear? Okay, up to here any problem, student? No, No, sir. Okay, it is simple, very simple. Okay, these all terms minus 1, 5, 1 equal to. Okay, now you know about the addition of two matrix. So it is very easy. You have to add element by element, that means position to position. So 4 alpha 1, second में है plus alpha 2, third में है 0. So you have to stop here. Then 0 minus alpha 2 plus 2 alpha 3. Okay, so this is your second entry. Third entry, minus 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3. Okay, then last entry, 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 4 alpha 3. Okay, so this is both side 2 cross 2 matrices. So you can compare when there is a equal to sign, that means both matrices are same. Okay, so you can compare directly. So we have minus 1 equal to 4 alpha 1 plus, okay, उसको थोड़ा रिवर्स में लिखते हैं. That means 4 alpha 1, 4 alpha 1 plus alpha 2 equal to minus 1. Second is alpha 2 plus 2 alpha 3 equal to 5. Okay, then third one is minus 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3 equal to 7, and last one is minus 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 4 alpha 3 equal to 1. Okay, so we have 4 equation and the system of equation is with 4 equation. यहाँ पे हमको जो सिस्टम मिला है वो 4 इक्वेशन वाली सिस्टम है. तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना सॉल्व करना. क्लियर? तो ये जो हमने किया फर्स्ट मेथड, ये दोनों एग्जांपल में, ओके, तो वो क्या था, सिंपल था इसलिए हमने कर दिया. लेकिन जब सिंपल नहीं है तब कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन यू हियर. एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? एनी कंफ्यूजन? no, sir. पक्का? What about others? Please let me inform. No doubt, Okay. sir. No, sir. Okay. So first I revise the concept of first semester. Okay, तो पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो उसमें क्या था कि AX इज इक्वल टू बी सिस्टम होता है. तो इसको सॉल्व करना है आपको. तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, A दैट मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X मीन वेरिएबल मैट्रिक्स एंड B मीन्स राइट साइड ऑफ मैट्रिक्स. ओके, जो इक्वल टू के उस साइड पे वो B में चला जाएगा. तो you require these three things. Okay, and solve it. So you go with the augmented matrix AB, yes or no, and उसको रो ऑपरेशंस को यूज करके आप क्या बोलते थे, आप कुछ ऐसे ले आते थे ना, क्या था, 1 1 1 इस टाइप का है ना, उसको क्या बोलते थे हम, रो इक्वलन फॉर्म. क्लियर? ओके, इसको क्या बोलेंगे, रो इक्वलन फॉर्म में ले आते थे. देन यू कैन से दैट दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड यू से दैट दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट. कंसिस्टेंट होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, तो ये थोड़ा रिवाइज हो गया. एनीबडी गॉट इट? Yes, sir.
या रिपीट करूं पहले, क्योंकि ये अगर आपको अच्छी तरीके से पता चल गया देन यू कैन डू वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। कितने लोगों को नहीं पता चला, प्लीज रेज योर हैंड। निहिर, सुरेश, पृथ्वीराज सिंह, ओके 500 नहीं पता चला। कंचन, यू डोंट गॉट इट, 503, ओके। अब D2D स्टूडेंट सर वो पहले से 100 था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके। देयर, ओके डन। 500 को नहीं पता चला, नहीं पता चला है सर। ओके। यशराज सिंह, नहीं पता चला आपको, ओके गुड, डन डन डन, ओके उनको भी पता चल गया, ओके। देन वी स्टार्ट आवर एग्जांपल विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज माय ए हियर, कौन बताएगा? चलो, ए मीन्स कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ए, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हियर कैपिटल ए इज इक्वल टू, चलो ए लिखवाओ तो मुझे, हम लिखेंगे है ना, ताकि आपको पता चले, इसलिए ए फर्स्ट 0 एग्जांपल। 1 2 0 1 2, हाउ? 4 1 यस, 0 0। 4 1 0, 4 1 0। यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास तीन ही वेरिएबल है, दैट इज माय एक्स, ओके। तो पहले एक्स फिक्स कर दो, चलो एक्स क्या होगा मेरा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ओके। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, रो चाहे कितनी हो, है ना, डन, ओके। तो 4 1 0, ओके। सेकंड रो क्या होगा? 0 -1 2 0 नहीं, 0 1 होगा, 0 1 -1 नहीं होगा, 0 1 2, ओके। देन थर्ड रो -2 -2 2 1 2 1, ओके। हम क्या कर रहे हैं, तो जो अल्फा 1 का जो है कोफिशिएंट वो पहली पोजीशन पे लिख रहे हैं, अल्फा 2 का जो कोफिशिएंट है सेकंड पोजीशन पे, एंड जो अल्फा 3 का कोफिशिएंट है वो थर्ड पोजीशन में, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में नहीं, इसलिए वापस 0 लिख दिया हमने, ओके। इस हिसाब से हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। देन फोर्थ रो इज -2 3 4, ओके। एक्स मैंने फिक्स कर दिया है कि वो मेरा वेरिएबल है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ओके। नाउ व्हाट इज माय बी हियर, व्हाट इज माय बी? तो बी मीन्स इक्वल टू के उस साइड पे जो जो एंट्री है वो सारी मेरी बी में चली जाएगी और वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा -1 5 7 एंड 1, क्लियर, ओके। एनी प्रॉब्लम? सेकंड रूम सॉरी विधि, -1 2 -1 होगा सर। कौन सा? सेकेंड रो सर। 0, यस यस यस, अल्फा माइनस है ना, यस माइनस अल्फा 2, सॉरी दिस इज योर माइनस अल्फा 1, ओके डन, ओके। नाउ इज इट ओके? यस सर। Okay, so we start our augmented matrix. So the augmented matrix is, okay, augmented matrix is A पहले लिखना है, उसके साइड में बड़ा सा लाइन करके B लिखना है। तो what is it? So A is मेरा 4 1 0 0 -1 2 -2 2 1 -2 3 4, and here you have to line, and B is my -1 5 7 and 1, okay. Now what I can do here, first entry leading 1 बनाना है, that means how we can do that, we have only 3 possibility, you learn this in your first semester। कौन सी 3 रो ऑपरेशन है हमारे पास? वन है कि RI और RJ को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ओके, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस नोटेशन। देन RI को मुझे RI में कुछ चेंज करना है, लेकिन कोई कांस्टेंट RJ से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना है, दैट यू गो विद दिस रो ऑपरेशन। एंड थर्ड वन इज इजीली RI टेंड्स टू KRI, डन, ओके। So these 3 operations are used in this type of examples, okay। तो मुझे फर्स्ट जो करना है वो 4 बनाना है, 4 को मुझे 1 बनाना है। तो how we can do it?
तो 1 बनाने के लिए उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. यस, तो दैट मीन्स R1 टेंड्स टू 1 by 4 R1, दैट इज माई फर्स्ट ऑपरेशन. सो यहाँ पे मेरा 1 by 4, 0 minus 1 by 4 हो गया. डन. यू कैन ऑल्सो यूज डॉटेड लाइन. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सॉलिड लाइन की जगह पे आप डॉटेड लाइन भी यूज कर सकते हो ए एंड बी के लिए. बाकी की रिमेनिंग जो रो है उसमें नो चेंज, क्योंकि हमने उसको कुछ नहीं किया है, तो वो एज इट इज रहेगा. 5 and 7, यहाँ पे लास्ट बचा -2, 3, 4 and 1. क्लियर? ओके, देन 1 जहाँ पे हमने बनाया है लीडिंग 1 के नीचे, द फॉलोइंग एंट्रीज द बिलो एंट्रीज ऑफ 1 विल बी 0. ओके, तो जो 1 के नीचे जितनी एंट्री है उसको हमको 0 बनाना है. तो सेकंड में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब जो -2 है उसको मुझे 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो आप हाउ वी कैन राइट इट. सो यहाँ पे R3 टेंड्स टू, देखना अब टेंड्स टू R3, जिसमें चेंज कर रहे हैं वही पहले लिख देना है. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट छोड़ दो और R1 जो हमने 1 बनाया है उसी का यूज करना है. तो मैं यहाँ पे R3 वाली जो मेरी एंट्री है वो -2 है, यहाँ पे जो भी होगा 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 हो जाएगा. 2. ओके, तो मेरा जो रो ऑपरेशन है वो हो गया R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1. ओके, सेम तरीके से R4 के लिए, तो R4 टेंड्स टू R4 प्लस 2R1. डन. जिसको 1 बनाए उसी का आपको यूज करना है. ओके, दिस इज माय नेक्स्ट ऑपरेशन. सो पहले हम करेंगे, तो देखो यहाँ पे, सो फर्स्ट 2 रो में नो चेंज है तो उसको तो पहले एज इट इज लिख देंगे. ओके, उसमें नो चेंज है तो कोई चेंज नहीं करेंगे. तो 1 by 4, 0 and 1 minus 1 by 4 एज इट इज लिख दिया. 0 minus 1 2 5. ओके, तो यहाँ डॉटेड लाइन. अब जो इसमें वो मेरा यहाँ पे 0 हो रहा है, तो वो तो हमने यहीं पे चेक कर लिया था. अब यहाँ पे देखो, तो मेरी एंट्री जो है R3 की जगह पे आप 2 रिप्लेस करो, प्लस 2 तो आपने मल्टीप्लाई किया है. अब R1 मेरा है 1 by 4, तो वहाँ पे R1 रिप्लेस करो, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरी एंट्री हो जाएगी 2 plus 1 by 2 एंड इट इज 5 by 2. एम आई राइट? एनी डाउट स्टूडेंट? No, sir. अदर स्टूडेंट? यस. ओके, तो 5 by 2 हो गया. तो अब यहाँ पे 1 के बारे में सोचते हैं. चलो, तो 1 के बारे में क्या होगा, तो 1 मेरा फर्स्ट ओरिजिनल एंट्री है, तो मैं पहले 1 रिप्लेस करूंगा. यहाँ पे देखना R3 में मेरा फर्स्ट 1 है, तो मेरा 1 प्लस 2 तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है. अब R1 मेरा क्या है 0, तो वहाँ पे 0 रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर 1 आया, तो यू हैव टू राइट हियर 1. नाउ थिंक फॉर 7, तो 7 plus 2 into -1 by 4, so it gives 7 minus 1 by 2. तो 7 minus 1 by 2 कितना होगा, बोलो? 13 by 2. 13 by 2. Yes, so this is your 13 by 2. Okay, now think about the R4. तो R4 के लिए यहाँ पे 0 हो गया. अब 3 है मेरी ये एंट्री, 3 plus 2. अब R1 की एंट्री है वो 1 by 4 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 plus 1 by 2 अगेन, तो 7 by 2. 7 by 2. Yes, so this is your 7 by 2. Then again think about the next entry. So next entry के लिए अगर आप सोचेंगे तो what we have, R4 में क्या है, तो 4 है ना. तो 4 पहले मैं यहाँ पे R4 की जगह पे रखूंगा, 2 मेरा एज इट इज रहेगा. अब R1 में वापस 0 है तो वो 4 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 4. देन लास्ट क्या होगा, 1 है मेरा, R4 मेरा 1 है, तो आई पुट हियर 1 plus 2 and minus 1 by 4, so it gives me 1 minus 1 by 2, so it is 1 by 2. Clear? तो this is your 1 by 2. Clear? तो we complete first step. ओके, तो ये जो फर्स्ट ये बनाया उसके बाद ये किया वो फर्स्ट हो गया. अब we think about the कौन से पॉइंट के लिए थिंक करेंगे हम, कौन सी पोजीशन के लिए, तो अब इसको 1 बनाना है.
ओके इसमें ऐसा होता है कि इस तरीके का स्टेयर बनाना है ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 और 0, 1 और 0। ओके तो देखेंगे, तो इसको अब 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? R2 2 minus 1 R2. R2 टेंस टू, ओके कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। I am using here R2 tends to -1 से मल्टीप्लाई कर देते ना तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ओके तो अवर नेक्स्ट ऑपरेशन अगर कंप्लीट कर दिया क्या होगा? इट इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट। ओके सो 1 1/4 0 डॉटेड लाइन, -1/4 0 1 -2 हो जाएगा ये, और ये -5, सिर्फ हमने साइन चेंज किया। ओके सो 0 5/2 1 13/2 एंड यहाँ पे 0 7/2 4 1/2, क्योंकि जो नीचे वाली दो रो है, दो रो नीचे वाली और ऊपर वाली 1 3 एंड 4 रो में हमने कुछ नहीं किया था चेंज, इसलिए वो एज इट इज। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क, कौन बताएगा? नेक्स्ट क्या R3 करेंगे? tends to यस ये जो एंट्री है उसको मुझे 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो व्हाट आई कैन डू हियर, सो इट इज वेरी सिंपल, सो R3 टेंस टू R3। अब इसी को मुझे रिमूव करना है, तो -5/2 कर दूं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एंड R2 लिख देता। सेम तरीके से R4 के लिए, दिस इज द शॉर्टकट, आप सीधा देख सकते हो। R4 मुझे माइनस कर देना है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाए, और R2 का मैं यूज करूंगा। क्लियर? ओके सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये किस में चेंज हो रहा है? सिर्फ R3 एंड R4 में। तो सीधा मैं पहले 1 एंड 2 तो लिख दूं एज इट इज, तो 0 -1/4 सॉरी 1/4, यहाँ पे 0 1 -2 -5। ओके हियर 0 फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब 5/2 तो वाली हमने चेक कर लिया कि 5/2 -5/2 हो गया, वो 0 हो जाएगा। अब थर्ड के लिए वेरीफाई करते चलो, तो 1 -5/2 और R2 की जो वो है -2, तो -2 2 कैंसिल आउट, सो 1 + 5, तो वो आपको क्या दे देगा? 6। ओके सेम तरीके से लास्ट के लिए चेक करते हैं। चलो तो लास्ट के लिए क्या होगा? 13/2 मेरी ओरिजिनल एंट्री है, तो R3 की जगह पे मुझे रखना पड़ेगा 13/2 -5/2 तो है ही मेरे पास। अब R2 की एंट्री उस प्लेस पे -5, तो यहाँ पे 13 - +25 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? चलो बताओ, दिस इज 38/2 19. यस 19। ओके तो ये R3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो R4 के लिए करते हैं। तो R4 के लिए ये 0 है फर्स्ट, ये भी 7/2 -7/2 होके 0 हो जाएगा। नाउ थिंक फॉर R4, तो R4 की जगह पे मेरा 4 है, -7/2 तो है ही, R2 की एंट्री है -2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 7, तो कितना आ जाएगा? 11। सो दिस इज माय 11। ओके नेक्स्ट एंट्री के बारे में सोचते हैं 1/2 के लिए। तो 1/2 -7/2 और R2 जो है मेरा -5 है। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? तो 1 + 35 डिवाइड बाई 2, इट गिव्स मी 18, 36/2 है ना, तो दिस इज योर 18। क्लियर? ओके नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क, मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ। 11. 6 को 1 6 को 1 बनाना पड़ेगा। ओके तो 6 को 1 बनाने के लिए वी यूज द नेक्स्ट ऑपरेशन एज R3 टेंस टू, अब 6 को 1 बनाना है तो उसी से ही कर दो ना डिवाइड। ओके R3, तो अब नेक्स्ट मेरा मैट्रिक्स तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, वो क्या होगा? इट इज इक्विवेलेंट टू 1 1/4 0 -1/4 0 1 -2 -5 नो चेंज
अब यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 एंड 19/6, ओके, और लास्ट 0 0 11 एंड यहाँ पे 18। डन, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 11 को 0 बनाए या ना बनाए, है ना, कोई प्रॉब्लम होगा, चेक कर लेते। चलो 11 को 0 बनाते हैं, तो 11 को 0 बनाते हैं, क्या करेंगे हम, तो सीधा हमारा R4 टेंस टू R4 माइनस 11 R3, क्लियर। तो उसको अगर आप ये यूज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, यहीं पे लिख देता हूँ। तो क्या होगा मेरा 1 1/4, 0 -1/4, उसमें कोई चेंज नहीं है, 0 1 -2 में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 19/6 में नो चेंज, यहाँ पे 0 0। अब 11 को हमको 0 बनाना था, तो 11 - 11 कर दिया मैंने, 0 हो गया। अब 18 वाला एंट्री सिर्फ चेक करना है, तो 18 - 11 × 19/6 क्या होगा बताओ, चलो। 101/6। 101/6, ओके, आप पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन वेरीफाई करना है सब लोग, वेरीफाइड, ओके, ये आ रहा है कि नहीं, ओके। तो 101/6, ओके, गुड, क्लियर। तो ये क्या हुआ, अब मुझे बताओ, चलो। अब यहाँ पे देखो, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हुआ, वो कैसे चेक करेंगे, तो लुक एट हियर एवरीबॉडी, ओके, सब लोग यहीं पे हो, प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन, एवरीबॉडी इज हियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, डन। तो यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, यहाँ पे आप चेक करो कि पहले हम क्या करते थे, थोड़ी इन चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या किया था कि पहले हम चेक करते थे कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ओके, इसका हम चेक कर रहे थे रैंक, ओके। अब ये दोनों अगर सेम होता है, देन वी कैन से दैट इट इज कंसिस्टेंट। अगर ये सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। लेकिन रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो, चलो, ये जो मेरा फर्स्ट है वो मेरा ए है। अब ए में मुझे बताओ कि नॉन जीरो रो कितनी है, हाउ मैनी नॉन जीरो रोज इन ए, 3, ओके। तो दैट इज माय रैंक, ओके। तो यहाँ पे देखो लास्ट रो 0 है, लेकिन बाकी की सारी नॉन जीरो है, उसमें एक एंट्री तो नॉन जीरो है ही, ओके। तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे 3 रैंक है, ओके, क्योंकि एक 0 हो रहा है, डन। अब सिमिलरली मुझे ये पूरा कंसिडर करके है, वो कंसिडर करके बताओ कि इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, 4। 4. ओके। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के बीच में मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली आई हैव नॉट इक्वल टू, क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू 4 होगा, एम आई राइट, क्लियर, Yes, sir. डन। तो अब ये नॉट इक्वल टू साइन आया, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, एम आई राइट, ओके। अगर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया तो व्हाट वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन नॉट राइट -1571 as linear combination ऑफ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको लिखना था, A1 था, A2 था एंड A3 था, क्लियर, डन। हाउ मैनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज रेज योर हैंड। पूरा एग्जाम्पल कितने लोगों को पता चला, आई वांट टू नो। वेरी गुड, ओ मैनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, यस यस, ओके ओके। सौम्या, पार्थ, धैर्य को तो प्रॉब्लम है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सौम्य एंड पार्थ,
एंड 509 पार्थ को नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। सौम्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एंड 509 okay, 509, are you there? Yes, sir. Okay, what is your problem? You don't understand this example? No, sir. Last time can't understand. Okay, which one? Last portion? Yes, sir. Okay, I repeat it. Okay, so give me confirmation. Okay, so first, is there any doubt up to here? No, sir. Okay, so for consistent inconsistent you have to find two things. First is the rank of A, okay, and second thing is rank of matrix AB, that means our augmented matrix. ओके, तो रैंक ऑफ ए कैसे फाइंड करना है? तो रैंक ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको ए वाला जो पार्ट था हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसमें कितनी रो जीरो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे जीरो एक ही है और नॉन जीरो कितनी है? 3 है। Yes. दैट इज माय रैंक ऑफ ए। डन, फर्स्ट स्टेप पता चल गया। ओके Okay, sir. ओके, सेम तरीके से ए बी अगर मैं फाइंड कर रहा हूं पूरे मैट्रिक्स का, तो उसमें कितनी नॉन जीरो हो गई? हाउ मेनी रोज आर नॉन जीरो? 509। Yes, sir. ओके, कितनी नॉन जीरो रो है पूरे ए बी में? ये पूरे मैट्रिक्स में अगर मैं इसको निकाल दूं, 7. नहीं, नॉन जीरो रो बोल रहा हूँ। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4 है ना? Yes. ये भी है ना यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री। डन। Yes, sir. तो ये 4 हो गया उसका रैंक। अब Okay. 3 नॉट इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर नॉट इक्वल टू। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन होता है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है, तब उस सिस्टम को बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे? Okay. इनकंसिस्टेंट। ओके, अब अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, Okay. और Okay. उस टाइम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज मिलेगा। डन। Okay, sir. नाउ एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, एनीबडी एल्स? क्लियर? ओके, सो दिस इज इन योर होमवर्क, इसके लिए आपको देखना है। चलो, ओके, 6 -8 -1 -8 के लिए आपको चेक करना है। लिख लो, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशन? ये तो नॉट हो गया ना, अब इसके लिए आप वेरीफाई करना कि ये हो रहा है कि नहीं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3? ओके, आपको यूज करना है। डन, क्लियर? तो ये आपको होमवर्क में दिख रहा हूं। अब चेंज कहां से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चेंज यहां से होगा। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, मैं थोड़ा ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? जो नया दिया वो, दैट मीन्स इट विल बी 6 -8 -1 एंड यहाँ पे -8। तो ये सिस्टम भी वही का वही रहेगा। ओके, इज इट विजिबल? दिस इंक इज विजिबल और नॉट? स्टूडेंट, ये इंक दिख रहा है? विजिबल सर, विजिबल। Yes, sir. Visible. ओके, तो यहाँ पे जो ये जो है इक्वल टू के यहाँ पे वो सारे चेंज हो जाएंगे आपके, यही चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, एंड इट विल बी -8। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपका बी चेंज हो गया, और बी चेंज होने से आपका ये जो सारा ये सभी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, और जो आपका लास्ट में जो मिलेगा वो आपको अच्छी तरीके से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मिल जाएगा। ये सारी जो राइट हैंड साइड ही चेंज होगा पूरा,
ऑपरेशन सब कुछ वही का वही रहेगा, सिर्फ राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा। डन? ओके, यू कैन डू, कर पाएंगे ना Yes, आप sir. लोग? ओके, गिव मी योर स्टूडेंट। Yes, sir. ओके ओके, भरोसा रखता हूँ कि कर देंगे, है ना? Yes, sir. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट। अगर आप नहीं कर पाए तो, है ना? सिंपल है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो करके आए वही करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंटली चेक करना है, सो हो जाएगा। डन? ओके, concept, it is span. Okay, so span, what do you mean by span? So the span of a non-empty subset S of a vector space V is a set of all linear combinations of any finite number of elements of S. It is denoted by span. This is the notation for span. You can write in this way, span of that set. Okay, और कुछ कुछ बुक में ऐसे भी आपको दिखाई देगा L ऑफ S, और कुछ बुक में इस तरीके से भी दिखाई देगा कि बॉक्स के अंदर S लिखा होगा। ओके, सो यू कैन डिनोट स्पान एज एनी वन ऑफ दिस सिंबल। ओके, सो व्हाट इज इट? स्पान ऑफ S इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू सन अल्फा एंड Vn। Vi आपको S में से लेना है, अल्फा जो सारे हैं वो R में से लेना है, और जो रेंज है I की वो 1 लेस और इक्वल टू I लेस और इक्वल टू N है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पान मीन्स क्या है कि स्पान इज, अब जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन आगे फाइंड किया, तो ऐसे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो सभी का एक सेट है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था कि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा था ना 3 1 -5 में, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन मिला दैट इज दी, आप उसको एक सेट में लिख दो, दैट इज दी स्पान। क्लियर? ओके, एनी कंफ्यूजन स्पान की डेफिनेशन में? स्टूडेंट रिपीट करूं? Yes, sir. ओके, रिपीट कर देता हूं, चलो यहाँ पे। ओके, रिपीटेशन में क्या है कि यहाँ पे देखो, स्पान स्पान ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट S, मुझे नॉन एम्प्टी सेट S का स्पान फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट है, ओके, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो एक सेट में लिख दूंगा, दैट इज योर स्पान। अंडरस्टैंड? नाउ इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे एक सेट में लिखना है, बस नथिंग एल्स। हमने जो किया वही का वही प्रोसीजर करना है, लेकिन यहाँ पे स्पान को आपको सेट में लिखना है, दैट इज दिस स्पान। ओके, अब स्पान में क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया था कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, ऐसा चेक करो, तो ये वेक्टर दिया था, बस वही वेक्टर यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो आपको वही निकालना है। क्लियर? तो अगर वो V मिल जाता है, V वाला जो अल्फा 1 V1 करते थे हम प्लस अल्फा 2 V2 करते थे, है ना, ये तो हमारे पास सारे होंगे S में से लिया हुआ, लेकिन ये नहीं होगा, वहाँ पे गिवन था, यहाँ पे नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कंडीशन डिफाइन करके देना पड़ेगा कि इसको स्पान होना है तो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं होना है तो नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? डन? एनी डाउट स्टूडेंट स्पान में? No, sir. Okay, what about others? No, sir. No, sir. Okay,